ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਆਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਭਾਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਤੇਸ਼ ਆਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। ਰਿਤੇਸ਼ ਆਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जो इन्हों तुसी आप विकीपीडिया जावांगे जो तुसी रितेश आर ऐड करोगे तो इन्हों पूरी की पूरी हिस्टरी निकलती है। और ये शिमले के विच बोर्न होए हैं। एजुकेशन इन्हों की DAV कॉलेज 10वीं तक शिमले च रहे। उस तो बाद अपना एजुकेशन इन्हों की DAV इंस्टीट्यूशन हुई है। यूनीवर्सिटी के विच इन्होंने जियोलॉजी के विच अपना सारे फ्यूचर कोर्सिज किए हैं, PhD भी की है। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 17,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ 8-10 ਵਾਰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਗੋਨ ਦੇਅਰ ਫॉर ਅਬਾਊਟ 5-6 years ਨਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਟ ਅਸ ਇਨਵਾਈਟ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਆਰਿਆ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਆਲਸੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗਲਵਾਨ ਅਬਾਊਟ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਆਲਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਿਬੇਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਡਾਗ ਜੌਨਸਨ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਆਰਡਾਗ ਜੌਨਸਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਿਟਵੀਨ ਤਿਬੇਟ ਐਂਡ ਲਦਾਖ। ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ 1962, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ बेसिकली चाइना वांटेड टू टेक एक्साइज इन द एरिया सो दैट वो अपनी वो रोड निकाल सके वहां से। तो उस वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਓ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ। Since we were the defenders and we had actually lost the battle, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 62 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। Now since it is not formalized, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ LAC ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਮੈਚਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਪਸੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਦਿਪਸੰਗ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਗਲਵਾਨ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਗੋਦਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੋਖਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। They were taking advantage of the fact that the line of control is not line of actual control is not demarcated.
ਹੁਣ ਵੈਨ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਅ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੀਕਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਮੂਵ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਗਲਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਬੈਕ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ 16 ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ, ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ there was physical violence and ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ, ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ was killed by those people। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਬਾਲ ਟੂ ਆਈਬਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਮੇਡ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਵਾਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੈਟ ਫਾਈਟ ਵੈਂਟ ਔਨ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 16 ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, 16 ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 3rd ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਆਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੂ ਡਾਈਡ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਸ ਫਰਮ 3rd ਪੰਜਾਬ ਕਾਤਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। तो ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ। 10-12 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਏ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ 1962 ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਇਆ। 20 ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ ਸੋਲਜਰਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 50, 60, 40 ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਐਸਟੀਮੇਟਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਿ ਇਟ ਵੈਂਟ ਬਿਯੋਂਡ 100। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਰਬਲ। ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਡੀਲਿੰਗ ਡਾਲਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੈਰਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਦ ਮੋਲਡੋ ਪਲੇਨਸ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਲੇਕ। ਸੋ ਗਲਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਤਸੋ ਲੇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਆਇਆ। Now I will tell you the latest situation as far as this is concerned, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਪਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਲੋਂਗ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਪਸੈਂਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੂਟੀ ਨੋਜ਼ਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੁਲਫ ਵਾਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ਼ੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ G7 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਬੈਲਟ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਅ ਇਕੁਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦ ਥਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, USA ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। So basically quad ਜਿਹੜਾ it is meant for social works, for vaccinations and this and that, but ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਨਾਟੋ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਟੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਐਂਡ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੌਨਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ I hand over the podium to Ritesh Arya ji. Thank you. नमस्कार जी। आज का जो विषय है, 1 साल हो गया गलवान के संघर्ष को, और ये मैं एक प्रेजेंटेशन के द्वारा शुरू करना चाहता हूँ और ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने इस दिन अपनी शहादत देके गलवान को तो सुरक्षित किया, पर एक ऐसा मैसेज दे दिया चाइना को कि वो कभी भी दोबारा से ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि आगे इंडिया की कोई भी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगा। गलवान कॉज अगर एक लाइन में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसकी एक लाइन में मतलब क्या है कारण है, तो मैं कहूँगा 2013 में भी मैं गया था और लोगों से जब मैं पुराने ITBP के लोगों से मैं मिलता हूँ वहाँ पे, और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप कभी देखना चाहें मैं दिखा सकता हूँ, तो वो ये बोलते थे 24 से 28 दिन लग जाते थे हमारे को दौलत बेग कुर्डी एरिया में पहुंचने के लिए, और फिर हम अपना एरिया कंप्लीट कर लेते थे। और कई बार हमारे को जो वहाँ पे शुरू के जो जवान बताते थे कि वहाँ पे ऐसे लेदर फेंक देते थे और सुई धागा फेंक देते थे और वो कहते थे जूते तुम अपने बनाओ वहाँ पे बर्फ के बीच में, और जो खाना था वो वहाँ पे आ गया तो खा लिया बस उसमें। तो इतनी हार्श कंडीशंस के साथ जो पुराने जवान थे उन्होंने वो बॉर्डर दौलत बेग कुर्डी के जो ट्रैक जंक्शन में अभी भी जो उन्होंने बचा के रखी हैं, वो उन जवानों की इतनी कुर्बानियां हैं वहाँ पे कि वो और कहानियां हैं उनकी सबकी कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी इस मामले में अपने जवानों के प्रति बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रही थी कि इनको भी हमने, जैसे वो एयरपोर्ट की स्ट्रिप बन गई, अगर वो यहाँ से जहाज ही लैंड करवाए थे वहाँ पे और इनको एकदम उस टाइम 1962 में चुशगुल में जो स्ट्रिप बना दी थी इन्होंने और वो लैंड करवाए थे, तो वहाँ पे सिनेरियो कोई और होता और चाइना मेरे ख्याल से काफी पीछे हो जाता। अगर थोड़ा सा मैं इसको तो मैं ये बोल रहा था कि जो गलवान का सेक्टर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ये अनइनहैबिटेड प्लेस है। पेंगोंग सो में भी हमारी लड़ाई जो हमारी साइड वाला पेंगोंग है जहाँ पे वो अपने देखोगे 3 इडियट्स की जो पिक्चर थी, वहां पे आप जा रहे हो लुकुंग से लेके थाकुंग तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाइना वाले कभी नहीं आएंगे वहां पे क्योंकि वो टूरिस्ट के द्वारा आपने अपना हक जमा दिया, वहां पे फोटोग्राफ खींचते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है वहां पे हमारे नोमैड्स जाते थे और नोमैड्स वहां पे क्या करते थे, जैसे समर्स में तो वो यहीं पे विंटर्स में यहीं पे रहते थे, समर्स में जब होता था तो वो क्या करते थे, जब ये पेंगोंग लेक फ्रीज हो जाता था इसके ऊपर चल के दूसरी तरफ ग्रेजिंग करने चले जाते थे, फिर वापस आ जाते थे।
तो उनके याक्स होते थे। पर अब जो कहानियां आती हैं तो याक्स उन्होंने चाइना वालों ने पकड़ लिए और वो आए आर्मी के पास, तो आर्मी वालों ने भी और आईटीबीपी ने भी कहा कि उनको किसने बोला वहां पे जाने के लिए, ऐसी ऐसी कहानियां वहां पे हैं। तो वो अब हमने क्या किया, खुद ही मान लिया कि पैंगोंग का जो हिस्सा हमारे पास है इस साइड वाला वो तो हमारा है, लेकिन जो दूसरी साइड वाला है वो कन्फ्लिक्ट है। अब चाइना ने क्या कर लिया, जहां पे आप नहीं आए हो वो भी लैंड हमारा हो गया। वो इस पॉलिसी से चल रहा है कि भैया आपने आज तक क्लेम नहीं किया, ना ही आपकी कोई यहाँ पे पोस्ट है, ना ही यहाँ पे आपकी कोई गाँव है, यहाँ पे कोई कुछ है, इसलिए वो यहाँ पे है। अब क्या होता है, तो ये जितना भी आपका गलवान का एरिया है, गलवान वैली मतलब शोक रिवर ही है, शोक रिवर ही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये तुक स्कर्दू से लेके मतलब गिलगित उधर से स्कर्दू से लेके, और ये तो ये शोक रिवर जो पहले इंदस से मिल जाएगी वो वहां से लेके और ये आगे तक एक ही रिवर है। और इसमें ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास कोई हैबिटेशन नहीं है और कोई कुछ नहीं था, सिर्फ आईटीबीपी की कुछ पोस्ट थी। और वो मैं सोचता हूँ यहाँ पे आईटीबीपी का भी कुछ फेलियर रहा है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से रोल उस टाइम नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर आर्मी ने वो जज्बा जो दिखाया वो अद्भुत था, और फिर बाद में सारी सपोर्ट आई है और कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन हमारे को अब थोड़ा सा अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाऊं तो आप देखेंगे कि ये सारा तिब्बत का नक्शा है और ये लद्दाख का नक्शा है, और यहाँ पे ये सारा का सारा तिब्बत है। हमारा कभी भी चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं था। अब ये चाइना ने ये सारा बना दिया है, ये सारा सारा चाइना हो गया। अब ये इंडिया का पोर्शन है सारा का सारा। अगर हम ये तिब्बत का पोर्शन इनसे अलग कर दें तो हमारा कोई बॉर्डर चाइना के साथ फिर भी नहीं रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर इसको थोड़ा सा 1800 में ले जाएं तो ये जनरल एक जोरावर होते थे, और इन्होंने अकेले ही आज लद्दाख की अगर हम कह सकते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा है लद्दाख, या गिलगित बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, या मानसरोवर तक की हम बात करते हैं, तो वो सारे का सारा एक ही बंदे को श्रेय जाता है, और वो थे जोरावर सिंह। अगर ये उस टाइम ना होते तो लद्दाख हमारे पास ना होता, हम गिलगित और बलूचिस्तान को भी हमारे पास होने की बात नहीं कर सकते थे। तो इनके बदौलत 1834 से लेके 1840 तक जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके बदौलत आज गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख का हिस्सा और आगे मानसरोवर तक ये सारी की सारी हम बात करते हैं। और फिर मतलब कुछ ट्रीटीज हुई इनकी, जब रंजीत सिंह जी का देहांत हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने इनको बोला वापस आ जाओ, और उन्हें 1841 में जब ये वापस आ रहे थे, ये आना नहीं चाहते थे, नहीं तो आज तिब्बत भी हमारे पास होता अगर ये जोरावर सिंह आगे चलते रहते। तो इनकी 1841 में मौत हो गई, और उसका इतना आसानी था जैसे इस बार हमने अपने कर्नल साहब जब हमारे जिन्होंने शहादत दी थी उसके साथ हम सारे खड़े हो गया था पूरा देश, वैसे ही उस टाइम भी 1842 में डेथ ऑफ जोरावर सिंह की इवेंट किया। सारे डोगराज रेजिमेंट आगे, डोगराज उस टाइम आगे थे, और तिब्बती जनरल को उन्होंने मार दिया था 1942 में। और चुशूल की एक ट्रीटी हुई थी। ये चुशूल की ट्रीटी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें क्या हुआ था, ये इंडिया के बीच में एम्परर चाइना और वहां पे लासा के जो गुरु थे उनके बीच में हुआ था, और इसमें क्लियर कट किया गया था। चाइना वाले इतने डर गए थे जब इनका जनरल आगे थे, और जब डोगराज ने रिटेलिएट किया था जनरल जोरावर का, इन्होंने कह दिया था जितना हिस्सा है, जैसे आज ये बोलते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है वही तुम ले लो, हमारे को और नहीं चाहिए। जैसे गलवान के बाद ये बातें करने लग पड़े थे कि जैसी जैसी पोजीशन है वैसे वैसे ले लो, क्योंकि इनको पता है कि अगर अब ये बिगड़ गए हम तो इनका कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम भी 1842 में भी यही स्थिति थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन कर ली, दैट वी शैल नीदर एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर हैव एनीथिंग टू डू और इंटरफेयर एट ऑल विद द बाउंड्रीज ऑफ लद्दाख एज फिक्स्ड फ्रॉम एशियन टाइम्स। और एक और बात इन्होंने की थी, we shall not even to the extent of a hair's breadth act in contravention of the terms that we have agreed above regarding the friendship, the fixed boundaries of Ladakh. तो इन्होंने लद्दाख की उस टाइम बाउंड्रीज फिक्स कर दी थी, जो मानसरोवर भी हमारे पास था, गिलगित बलूचिस्तान लद्दाख ये सारा का सारा हमारे पास था, और इसने चाइना ने और तिब्बत ने मान लिया था कि ये कभी भी हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये थी उस टाइम की परिस्थिति। फिर 1959 में सबको पता ही है, जैसे कि वो तिब्बत को अटैक किया इन्होंने, और सारा दुनिया जो थी, अगर आप उस टाइम चाइना के अगेंस्ट हो जाते या दलाई लामा जी को प्रोटेक्ट कर देते तो तिब्बत इंडिपेंडेंट होता। आज का कोई रोना नहीं होता जो आज ये इतनी बातें हो रही हैं। चाइना को उस टाइम अपीज किया गया था, और वो कौन अपीज कर रहे थे, ब्रिटेन अपीज कर रहे थे इनको,
अमेरिका अपीज कर रहा था इनको, और जितना भी यूरोप था वो सारा अपीज कर रहा था चाइना को कि जो भी है, आप ताइवान है वो भी चाइना को दे दो, आप तिब्बत है वो भी चाइना को दे दो। इन्होंने ऐसे कर करके इतनी बुरी हालत कर दी कि तिब्बत आज वो बेचारे दलाई लामा को वहां से आना पड़ा। और उस टाइम अगर 1962 में फिर इन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया था, 1962 में जो अटैक किया, अगर उस टाइम की टाइम्स ऑफ इंडिया देखो आप, सिचुएशन स्टिल टेंस इन गलवान वैली, ये 1962 की हेडलाइंस है। इंडिया डिटरमाइंड टू होल्ड पोस्ट, 1962 में भी यही पोजीशन थी, ये अभी नहीं अटैक किया, 1962 में भी चाइना इस पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, वो कंट्रोल करना चाहता था। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके खड़े हो गए वहां पे बॉर्डर पे और बोल दिया कि एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, हम जहां पे हैं वो तो है ही है, लेकिन आगे देखना है हमारे को कहां तक जाना है, वो हमारी बाउंड्रीज हमारे को निर्धारित करनी है। ये बिल्कुल एक फर्म मैसेज था देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी, स्पेशली चाइना के लिए। चाइना ने सोचा था कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्दियों में जैसे अभी कर्नल साहब ने ब्रीफ में बताया था कि हमने कैलाश तक हमने कब्जा कर लिया, पर ये मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हमने क्यों छोड़ दिया वो पोजीशन, ये छोड़ना नहीं चाहिए था। ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, और आने वाले टाइम में ये हमारे को देके जाती, वो पोजीशन आने वाली बात नहीं थी। बोलो अब हमने कब्जा कर लिया, वी विल स्टे हियर एंड देन वी विल नेगोशिएट, ऐसा स्थिति होती तो ज्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से। और ये जब इन्होंने ऐसा कह दिया था, पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा हो गया था, सिर्फ मुंह से नहीं, अपनी हर हरकत के साथ। और इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे इनको करना है, बॉर्डर रोड्स वालों ने तो अपना जलवा दिखाया था। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने 2013 में जो ब्रिज की हमने नींव रखी थी, ये ग्राउटिंग के द्वारा, और ऐसी टेक्निक आज तक किसी ने फॉलो नहीं की थी, बड़ी सिंपल सी थी और बड़ा इफेक्टिव ये ब्रिज आज भी ये गलवान से ये श्योक रिवर के ऊपर क्रॉस बना है। और ये चुमताश, डीबीओ और आगे अब ये सियाचिन से भी इसको मिलाने की कोशिश हो रही है, कैप्सन एरिया, तो सारा का सारा ये हमारा वेल कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और ये एक पिक्चर है देमचौक की, अगर आप देखेंगे तो ये चाइना की साइड है। अब इन्होंने देखो स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस, ये 2016 की है, तो ये 2016 में इन्होंने स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बना दिए थे। और अगर आप उस टाइम की पिक्चर हमारी देखो तो ये ऐसे स्कैटर्ड ही थे। अभी भी बहुत मुश्किल है इनके साथ कम्पीट करना। तो मेरा जो हमेशा विषय रहा है कि मैं 30 सालों से अप्रोक्सीमेटली कितने 2000 जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उस टाइम भी मैं वहीं पे था, और मेरा काम था पानी मुहैया कराना आर्मी के लिए। ये तारा पोस्ट है, त्रिशूल के पास है, ये पेंगोंग लेक की तस्वीर है, यहाँ पे भी हमने पानी निकाला है। और ये 2000 में हमने उधर सियाचिन में अपने आर्मी के लिए पानी निकाला था। तो जहां जहां भी आर्मी को जरूरत पड़ी पानी की, चाहे वो कारगिल था, द्रास था, जब मैं -50 डिग्री का सेकंड हाईएस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, तो जहाँ पे असंभव था कि पानी नहीं निकल सकता, उस टाइम ग्राउंड वाटर इतना माना भी नहीं जाता था, लेकिन जो हमने थोड़े से मॉडल्स बना रखे थे उसके तहत हमने वहां पे जाके खोज की, और हर जगह आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के हमने उनको पानी मुहैया कराया। तो ये 14,000 फीट पे भी त्रिशूल में भी हमने पानी निकाला था उस टाइम। और इस बार भी जब गए थे तो वहाँ पे 2013 में ही हमने इनफैक्ट जो गलवान वैली थी वहाँ पे 2013 में ही हमने बोरवेल कर दिया था। और आगे एरियाज में जहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जरूरत पड़ी आगे आगे भी उसको एक्सप्लोर साइट्स देख के आए और आगे एक्सप्लोर करना था। अच्छा हुआ एनर्जी के सेक्टर में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो सारा जो हमारी साइड से वो सारा का सारा फॉसिल फ्यूल है, मतलब फॉसिल फ्यूल से जाओ। अब इस साल और पिछले साल से काफी सोलर पैनल्स और सोलर उसकी बात हो रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण जब बर्फ वहां पे पड़ती है तो एक्सेसिव स्नो हो जाती है। तो उसमें मैं यही कहा था, हम काफी सालों से ये बात कर रहे हैं कि जियोथर्मल एनर्जी वहाँ पे फुगा में है, चुमाथांग में है, त्रिशूल में भी हमारे को थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगी है। सियाचिन ग्लेशियर में मैंने 2011 में गर्म पानी का एक छोटा सा सोर्स निकाला था। पेनामिक में हमने जो सासोमा का बेस है वहाँ पे सासे के साथ ये करके हमने वो एक बनाने की कोशिश की थी कि उसको हम पूरा ऑयल फ्री फॉसिल फ्यूल फ्री एक कैंटोनमेंट बना दें। तो ऐसे ऐसे एफर्ट्स हम करते रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकल्स की एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं कि वो अभी तक जियोथर्मल एनर्जी जिस रूप में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। पर अगर आप चाइना को देखेंगे तो ये हमारा देमचौक एरिया है। इन्होंने क्या किया, इंडस रिवर है, इंडस में हम पाकिस्तान के साथ तो लड़ते रहते हैं इंडस ट्रीटी के बारे में, लेकिन इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक डैम बनाया हुआ है
इंदर ये देमचौक है, तो मतलब देमचौक अगर देखोगे तो मानसरोवर से आ रही है, तो उससे ये पहला पॉइंट है जहाँ पे इंडिया में एंटर करती है अभी तक। तो यहाँ पे इन्होंने एक डैम बनाया और यहीं से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और सारी दे रहे हैं। इससे भी मनोबल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। देखो बॉर्डर में आप कैसे अपने जवानों को अच्छा रखते हैं, वो कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं। लड़ाई तो बहुत, जैसे भी बताया कर्नल साहब ने कि 1962 के बाद ये पहला क्लैश हुआ है, नहीं तो पत्थरबाजी, नहीं तो हमारे पास भैया देखो हम रात को भी जनरेटर चला रहे हैं और हमारे को पानी आ रहा है और तुम्हारे को पानी नहीं आ रहा है। ये छोटी छोटी लड़ाइयों से भी वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वहां पे बॉर्डर में रहता है, जो मैंने देखा। तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वहाँ पे कुछ, ये तो हमारे थे, ये प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया आपको, पॉज किया था, और ये लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म तो हमने जैसे पानी का और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मनोबल था, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, और आर्मी का मनोबल हमेशा ऊपर रखा, जिसके कारण हम सर्दियों में ऐसी लोकेशंस पे हम चाइना पे अटैक करने में कामयाब हो गए जो चाइना ने कभी सोची भी नहीं। तभी वो थोड़ा सा बैक हुए हैं, तो वहाँ पे अभी फिर दोबारा से हम देख रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। तो लेकिन वो हमारे को कभी नहीं सोचना चाहिए था कि ये हमारी जीत है, ये हार है। हमारे को स्ट्रेटेजिकली आगे मूव करना है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है कि जो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी शुरुआत की थी कि हमारे को चाइना उसी एरिया में तंग कर रहा है जहाँ पे हमारी टूरिस्ट नहीं पहुंचे, या जहाँ पे हमारी फिल्में नहीं बनी है, या जहाँ पे हमारे जवान नहीं है। जवान अगर हैं भी तो मतलब उनको देखिए, उससे बड़ी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती। जैसे मैंने बताया, तो जब मैं ट्रैक जंक्शन में गया दिप्सन प्लेन में, तो वो बता रहे थे कि ये आर्मी की पोस्ट हमारी थी जी, जो लाल है सिर्फ इन्होंने पेंट किया, आगे आगे वो बन गया। पर जब तक आप वहाँ पे हैबिटेशन नहीं रखते, जब तक आपका टूरिस्ट इंडिया का कोई भी बंदा आके वहाँ पे जाके कोने में जाके अपनी सेल्फी नहीं खिंचाता, तब तक वो बॉर्डर नहीं, मतलब वो एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट रह जाता है। और जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे कि हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं वो ओपन कर दो वहां तक बॉर्डर टूरिज्म हमने डेवलप करना है, और हर एक बॉर्डर में जाके वहां पे लोगों को बसाना है। वहां पे आज की डेट में, जब मैं 2000 इतने सालों से हम काम कर रहे हैं वहाँ पे देमचौक में, तो वहाँ सारे माइग्रेट कर रहे हैं। वो शेपर्ड्स नोमैड्स हैं बेसिकली, वो सारे, उनको फैसिलिटी थोड़ी मिलती है, जीप मिल जाती है, वो चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे शेपर्ड्स नहीं बनना चाहती है। हमने इतनी बुरी हालत कर रखी है उनकी, क्योंकि सर्दियों में उनको खाने को नहीं मिलता, भेड़ों को क्या खिलाएंगे। वो आर्मी है, उनको क्वार्टर का काम देती है, वो 3-4 महीने देती है, उसके बाद वो भी छोड़ देती है उनको उनके अपने हाल पे। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि ये बॉर्डर अब वैसे नहीं रह गए, सारी सीक्रेसी आपको, मैंने ये गूगल की फोटोग्राफ्स हैं सारी, ये सब कुछ ओपन है। तो आप टूरिज्म को बढ़ावा दो वहाँ पे। इससे क्या होगा, जब आपकी टूरिज्म बढ़ेंगे, वहाँ पे होटल्स बनेंगे वहाँ पे, तो वो हमारा परमानेंट पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे चाइना आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि भैया ये यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी तो खाली लैंड है ना, खाली लैंड पे वो आपके पास आ गया यहाँ पे। अब अपने गलवान में अब बन गया, तो अब आपने हल्ला मच गया, तो वो गलवान आपका बॉर्डर बन गया। उसको तो इतना एडवांटेज मिल गया कि वो सारे का सारा लेके, हमारा ही लैंड लेके हमारे को ही दिखा रहा है कि भैया अब यहाँ तक तेरा है, उससे आगे मत मांगियो हमारे से कुछ भी। अरे क्यों नहीं मांगेंगे भाई, क्यों नहीं मांगेंगे? तिब्बत को हम आजाद करवाएंगे। लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए, तिब्बत को आजाद कराएंगे। कैसे नहीं करवाएंगे, तिब्बत को आजाद कराएंगे। कितने तिब्बती यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे, और उनको हम पॉलिटिकली सपोर्ट करेंगे, एक विजन के साथ चलेंगे। देखिए ऐसे कि हमने लैंड को कब्जा करना है कि चाइना आ गया यहाँ पे, और हमने पहले तो हम सोए हुए थे इतने सालों से कि ये हमारा है, कि हमारा। एक बंदा नहीं वहां पे गया, एक बंदे की जात नहीं वहां पे जाती थी। 2 महीने तक बंदे जा सकते थे, बाकी सारा पैराड्रॉपिंग होता था उस एरिया में, गलवान के सेक्टर में और डीबीओ के सेक्टर में। एक ऑल ऑफ अ सडन अब हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारे, अरे तो आप इसको एक स्ट्रेटेजी के तहत करिए। तिब्बत को सबसे पहले फोकस में लाना है, तिब्बत को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद औरों से रिकॉग्नाइज कराएं, एक स्ट्रेटेजी के तौर पे चलें। ये देमचौक का विलेज है जो मैं बता रहा हूँ, चाइना ने इतना डेवलप कर दिया। और इनसे जब मेरी माता जी से बात हुई थी, तो ये अपनी उसमें बात कर रहे थे, वो भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स पुरानी पड़ी हुई है। तो वो बोलती थी ना अपनी लद्दाखी भाषा में कि भैया पहले ये नया, हमारा बोलते थे जो इंडिया वाली साइड है वो नया देमचौक है, और ये पुराना था, और वैसे था, हमारे पास सारी फैसिलिटीज होती थी उनसे बहुत अच्छी। लेकिन अब उनके पास इतना है, उनके पास पानी है, घर है, उनके पास ये, इनके पास ये देखिए, ये इसी पत्थरों में तो ये इनके वो डंगर रहते हैं एक एक के ऊपर एक। और वैसे ही इन्होंने टेंट होते हैं, या इन्होंने मिट्टी के या पत्थर के ऐसे घर बना रखे हैं। तो बॉर्डर विलेजेस में ये बच्चे का भी उतना राइट है जितना मेरे बच्चे का है पढ़ने के लिए, अगर मैं इसको हिंदुस्तानी मानता हूँ। नहीं, ये बॉर्डर विलेजेस की हमारी स्थिति है।
तो स्मार्ट बॉर्डर विलेजेस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर वो फैसिलिटीज जो हम यहाँ पे चंडीगढ़ में सोचते हैं हमारे को मिलनी चाहिए, पहले हम सोचते हैं कि हमारे बॉर्डर विलेजेस में मिले, फिर हमारे को मिले, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस की भी ऐसी सोच होनी चाहिए। अभी ये टेंटों में रह रहे हैं बेचारे नोमैड्स, अगर इनके आप घर देख लोगे, जो ये समर हाउसेज हैं कि शेपर्ड्स के, मैं इनके साथ 1 महीना रहा हूँ और इनकी सारी समस्या देखिए कि मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भैया। ये अगर हट गए यहाँ से तो आपके बॉर्डर जो मर्जी कर लो, नहीं सुरक्षित रह सकते, चाइना ने आना ही आना है। आपको इनको स्थिर वहां पे हाउसिंग बनानी है, वो प्लानिंग करनी है सारी। अब 70 साल जब कितने सबसे ज्यादा हो गए हमारे को आजाद हुए, हमारे बॉर्डर विलेजेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। इंडस्ट्रीज लगाए वहां पे, पश्मीना की इंडस्ट्रीज, ताकि इनको कोई रोजगार हो। और एक लॉन्ग टर्म विजन में ये है कि अब आपकी माउंटेन वॉरफेयर होए तो आपके पास क्लोथिंग आपको दिमाग हो, इंडियनाइज्ड हो सारी। बहुत कुछ इंडियनाइज्ड है, लेकिन जैसे गलवान में पता लगा था कि हमारे को ये चीजें चाहिए, फ्रीजिंग वाटर में हमारी क्लोथिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, शूज स्ट्रांग होने चाहिए, तो उस तरह से इक्विपमेंट हमारी अप टू डेट हो सारी, और वो इंडिजिनस होनी चाहिए। कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमारे को भी, कोई लड़ नहीं रहे हम, चाइना से भी नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान टुचल होता है। हमारे को लड़ाई की तैयारी करनी है, हमारे को कैलाश भी चाहिए, हमारे को तिब्बत को भी आजाद कराना है। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, अभी नहीं है। हम 20 साल में हम हो जाएंगे, चाइना बिखरेगा, हमारे को ये मान के चलना है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, 20 साल की प्लानिंग, 30 साल की प्लानिंग, ये 5 साल की प्लानिंग से हटके काम करना है। कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट ना आए, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म विजन एक चाहिए हमारे को। देखिए चाइना के पास विजन है, वहां पे वो क्यों गलवान के लिए लड़ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके पास एक विजन है कि भैया मेरे को ऑयल चाहिए यहाँ पे, यहाँ से मेरा जो है सारा का सारा ऑयल आ रहा है तजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से, और ये पास करेगा यहाँ से। अगर इंडिया यहाँ पे रहेगा, हो सकता है वो पाइप वहां से बम फोड़ दे कोई, और हमारी पाइप सारी लीक कर जाए। और मतलब जियो वॉरफेयर कहते हैं हम इसको, बड़ी स्ट्रांग होती है, ये बड़ी प्लानिंग होती है इसकी, कि आप जियोलॉजिकली अपने रिसोर्सेज के साथ कैसे दूसरे बंदे के साथ लड़ते हैं। तो वो चाइना कभी नहीं चाहता, वो आज नहीं कल नहीं गलवान को करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम जब तक इसको अपने इंडिया के लोगों के साथ वहां पे नहीं जाके वो वहां पे काम करेंगे, या इंडिया के लोग वहां पे जाके अपनी जैसे तीर्थ यात्रा हम करते हैं, तो उनको भी एक तरह का ये यात्रा है। जैसे दिमचौक में हमने कहा था, और शुरू भी हुई थी थोड़ी सी यात्रा, जिसको हम छोटा कैलाश बोलते हैं। दिमचौक की जो लास्ट बाउंड्री है हमारी, वहाँ पे छोटा कैलाश है, उसमें वो अभी भी वो तिब्बती लोग वहाँ पे परिक्रमा करते हैं कई कई दिन, 10-10, 12-12 दिन की। तो एक शुरुआत के तौर पर जो हमारे पास हिस्सा है छोटा कैलाश का, जिसको हम बोलते हैं, उसी के साथ परिक्रमा शुरू करते हैं। मतलब हमारे को किसी ना किसी तरह से तो कोई ना कोई रूप लेके हमारे को वो बॉर्डर टूरिज्म का बहुत ज्यादा महत्व है। और ये इतना ब्यूटीफुल एरिया है, मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो सारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब तक ही, पर वो इतना अच्छा है। अगर आप इसको वहां पे ओपन कर दें सबके लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। अब ये जो मेरा ये जैसे मैं बता रहा था, जो बॉर्डर टूरिज्म है उसमें फिल्म्स भी आ जाएंगी, और ऐसे एग्जॉटिक लोकेशंस हैं जहाँ पे आप मतलब जियो टूरिज्म को बहुत अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। और आपके साथ ही आगे जाके, जैसे मैंने बताया, गलवान से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर आगे जाके दौलत बेग ओल्डी है, वहाँ पे मैंने प्रपोज किया था कि हम एक ब्यूटीफुल, जब मैं वहाँ पे गया था तो मेरे को लगा कि यहाँ पे कम से कम 1000 ऊँट आते होंगे उस टाइम, जब ये उज्बेकिस्तान से ट्रेड करने आते थे, वहां से कुछ लेके आते थे, कारपेट्स वगैरह, और ये यहाँ पे या अपना कोई सामान लेके आते थे, और ये ट्रेडिंग करते हुए पूरा वो ये सारा गलवान का तुक ये श्योक रिवर क्रॉस करके आगे स्कर्दू से होके ईरान इराक तक जाते थे, और अफ्रीका तक भी जाते थे। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था ये ओल्ड सिल्क रूट का। तो वहां पे मैंने कहा दौलत बेग ओल्डी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काराकोरम से जब पास आप क्रॉस करके आते हो तो आप इतने थक जाते हो वहां से, जब आप उज्बेकिस्तान से आओगे या किर्गिस्तान से आओगे या मंगोलिया से आओगे, तो दूसरी साइड से आगे, तो ये आपको एक अच्छी सी वैली मिल जाती थी। तो दौलत बेग ओल्डी मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ पे अगर 1000 उठाएंगे, तो अगर यहाँ पे आज की डेट में, जब मैं गया था वहां पे पानी की बहुत किल्लत थी, कई बोरवेल भी हुए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो हमने वहां पे जाके देखा, तो मेरे को लगा कि वहां पे एक 10,000 साल पहले वहां पे एक लेक था, जो लेक की दीवारें टूट गई। अगर हम थोड़ा सा उसकी वॉल बना दें तो पूरे का पूरा लेक हमारे पास बन जाएगा, और वहां से हमारी पानी की रिक्वायरमेंट तो सर्दी में भी गर्मी में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन हम उससे थोड़ा सा हो सकता है कि छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लें। और दूसरा चीज,
हम वहां से जब ये लेक बन जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल होता है, जैसे अब ये पैंगोंग लेक है तो ये साइकोलॉजिकल गेम है सारी कि तुम इतना कैसे तुम ब्यूटीफाई करोगे। तो अगर हम वहाँ पे एक अपना एक अच्छा सा विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी कर दें, एक टूरिज्म कर दें वहाँ पे डेवलप, कि यहाँ से बंदा गया और इतनी दूर जाके वहाँ पे लेक देख रहा है कि जैसे वो डल लेक है और वहाँ पे बोट शिकारा वगैरह शुरू कर दें, तो एक आर्मी वालों के लिए भी एक फील गुड फैक्टर होता है। और जितने ज्यादा लोग वहाँ पे आते हैं तो वो भी एक इंटरेक्शन रहता है। सिक्योरिटी एक इशू है लेकिन वो हम टेक केयर कर सकते हैं। जैसे सियाचिन में भी जब हमने स्टोरी की थी कि सियाचिन को खोलना चाहिए टूरिज्म के लिए, तो एक बड़ी वो पॉजिटिव मैसेज गया था जब 2011 में मैंने वहाँ पे पानी निकाला था और मैंने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हैं भाई, मैंने कहा ये जब अपने लोग यहाँ पे आएंगे तो ये बॉर्डर हमारा है, सेल्फी खींचो वो बॉर्डर हमारा है। तो उसी तरह से जैसे सियाचिन सेक्टर को ओपन कर दिया, वैसे दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, गलवान सेक्टर को भी ओपन कर देना चाहिए टूरिज्म के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और पूरे का पूरा वहां तक हम इसको डेवलप करें। तो ये बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे, ये मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इसको। देखो चाइना के पास मकसद है, अब चाइना के पास क्या मकसद है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इतना पैसा वो क्यों खर्च कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको नजर आ रहा है ऑयल गैस यूरेनियम। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई वहां पे स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम यहाँ पे, चलो ये हमारा एरिया है, बस ये एरिया तो हमारा है, लेकिन हम इतना पैसा वहां पे इंफ्यूज करें, लेकिन इन रिटर्न हमारे को डेस्टिनेशन क्या आ रहा है भैया, वो भी एक सोचने वाली बात है। हम एक यूनिट वहां पे बिजली का और उतना वहां पे सोच नहीं सकते कितना खर्चा वहां पे आ रहा है उसको मेंटेन करने का। तो उसके लिए हमारे को, फिर मैं सोचता हूँ जोरावर सिंह की तो एक मिशन था ही उसका कि जैसे उसने लड़के एक स्ट्रेटेजिकली कैलाश और मानसरोवर लिया, तो हमारा जो एक इतिहास कैलाश के साथ जुड़ा हुआ है वो भी हमारा वापिस आएगा। पर इसको भी अगर हम इसकी बात को रखें और इसका विजन लें और स्थिति को उनको याद कराएं कि कुछ भी वापस जो पहले की स्थिति थी ये इस स्थिति पे आ जाओ, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें हम। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे कि मैंने भी देखा जितना भी ये शोक वैली है सारी, इसमें बहुत रिच है मिनरल्स में, लाइमस्टोन इसमें बहुत है। तो हम इसमें इकोनॉमिक, जैसे वो ढूंढ रहा है कोई चीज, तो जियोलॉजिकली एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पे दें। हमें उम्मीद है कि यहाँ पे क्योंकि फॉसिल्स मिलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, हो सकता है यहाँ पे हमारे को तेल भी मिल जाए इन फ्यूचर। अगर यहाँ पे तेल मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हम उन एरियाज के बिल्कुल पास हैं जहाँ पे तेल मिल सकता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे को एक सेल्फ रिलायंट, एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी का एक्सपेंडिचर इतना आ जाएगा कि हम बाद में कहीं डिसोल्यूशन ना हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो टूरिज्म के साथ जोड़ के इसको इकोनॉमिक मिनरल इकोनॉमिक वेल्थ के साथ इसको जोड़ के, प्रोस्पेरिटी के साथ जोड़ के, और तीसरी चीज है तिब्बत के साथ पॉलिटिकली, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान और इन सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे यहाँ से मजबूत कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे बेनिफिट हम ले सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। और उस तरह से अगर हम चलेंगे तो मेरा ख्याल से हम एक नई दिशा देंगे इस संघर्ष को, और हम जीत चुके हैं ये लड़ाई। आगे कैसे हम इसको कैपिटलाइज करते हैं इस लड़ाई को, और कैसे इसको इकोनॉमिक के साथ जोड़ते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं इस रीजन की, और तिब्बत को कैसे हम इंडिपेंडेंस दिखाने की बात करते हैं। तो ये सारा का सारा एक इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। कैसे हम गलवान को एक आज से हम 20 साल बाद देखना चाहते हैं, 30 साल बाद हम गलवान सेक्टर को कैसे देखना चाहते हैं। तो ये छोटी सी मेरी एक पहल थी, और ये मैंने आइडियाज मेरे को पंजाब पल्स ने दिया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे।